Good morning, class 8. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the 6th video lecture of the chapter Synthetic Fiber. In last video, we have seen about plastics. Plastics means last 2 or 3 videos we have seen plastic. Plastic is of two types: thermosetting plastic and thermoplastic. Thermoplastic have linear linkage of monomer. Thermosetting plastic have cross-linked monomer. You know what is monomer. And in thermosetting plastic, it cannot be molded again and again. Once it is given a particular shape, it will retain the shape and it will not change its shape on heating. That is called thermosetting plastic. Example, bakelite and melamine. After that, we have seen thermoplastic. Means what is thermoplastic? Plastic that can be molded again and again is called thermoplastic. These two are like synthetic fiber. These two are also synthetic substance. These are prepared in laboratory. Okay. So after that, we have seen the general properties of plastic. It is bad conductor of heat, electricity. It is lightweight. It is less reactive. It do not act, means chemicals do not act on it. It do not corrode, जिसमें जंग नहीं लगता है. These are the features, general features or the properties of the plastic. In today's video, we are going to discuss about plastics and the environment. You know, whenever you go outside to purchase anything, you carry everything in plastic bag. You buy water bottle, cold drinks, that is also a plastic. Nowadays, whenever there is gathering in your house, or whenever there is any occasion like marriage or some party or something, at that time, instead of using the traditional metal plates, we are using the disposable, means thermocol, means made up of thermocol. This is disposable plastic. So these we use. Once it is used, whether it is your polythene bag, whether it means a carry bag, whether it is a water bottle, it is a cold drink bottle, or the disposable glass cup or the plate, all become garbage after use because it cannot be reused. These are called disposable. Once used, it is disposed, means it has to be thrown out. So it will create a garbage at your house, in your house, and after some time this garbage will find its path to the environment. क्योंकि आप उस गार्बेज को घर में तो रखिएगा नहीं, आप उसको फेंक दीजिएगा, तो बाहर फेंकिएगा, तो या तो वो मिट्टी में दब जाएगा, या तो वो ड्रेन में चला जाएगा, या आपका सीवर सिस्टम में चला जाएगा, या उसको एनिमल्स के द्वारा कभी कभी खा लिया जाएगा. काउस के द्वारा वो खा जाते हैं, खाना खाते हैं कचरा से उठा के, तो प्लास्टिक उसके मुंह में चला जाता है. सो दीज आर द प्रॉब्लम. एंड वन मोर थिंग, बिग प्रॉब्लम इज these plastics are not biodegradable. Degrade means to decompose. Decompose means to broken down into simple and harmless substance is called degrade. So degradable, biodegradable. Bio means living, degrade means decomposed, able means that can be decomposed by living organism is called biodegradable. Next term is non-biodegradable, means which cannot be decomposed into simple and harmless substance by the action of bacteria and fungi is called non-biodegradable, and which can be decomposed, it is called biodegradable. So plastics and synthetic fibers, they are non-biodegradable. So these substances, when it go into our environment, it remains in the environment for long duration because they cannot be decomposed.
So it will cause soil pollution, it will cause water pollution. If you cannot even burn it, if you burn them, then it will release poisonous gases into the environment and it will cause air pollution. So these all problem is because of the nature of the plastic, that is they are non biodegradable. ठीक है, so term is what is biodegradable, what is non biodegradable. समझाए हैं आपको, इसको पढ़िए, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लास 6 में भी ये आप पढ़े होंगे, क्लास 6 में ये बच्चा को पढ़ाया गया था, उस समय भी बताया गया होगा। लास्ट चैप्टर था गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, उसमें ये बताया गया होगा आपको। सो प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिर्फ प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर क्यों, मेटल्स आर लाइक एल्युमिनियम, टिन, इन सब का जो केन होता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कि इसको डिकम्पोज होने में 100 से 500 साल लगता है, तो उतना दिन लगने के कारण हम इसको मान के चलते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस लिख लीजिएगा, substance that cannot be decomposed or broken down or easily broken down, that cannot be decomposed into simple harmless substance by natural process such as action of bacteria and fungi. These bacteria and fungi are called decomposers, are called non-biodegradable substance, means substance that cannot be decomposed easily into simple and harmless substance by natural process such as action of bacteria and fungi is called non-biodegradable. Example, synthetic cloth हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, metals हो गए, these are all the example of the non-biodegradable. Biodegradable substance that can easily be decomposed into simple and harmless substance by natural process such as action of bacteria and fungi are called biodegradable substance. Any plant or animal product, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो प्लांट के प्रोडक्ट से बनाया गया है या एनिमल के प्रोडक्ट से बनाया गया है, वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होंगे। चाहे वो पेपर हो, कॉटन क्लॉथ हो, वुलन क्लॉथ हो, वेजिटेबल ऑयल हो, सिल्क हो, कुछ भी हो, जो भी आप सोच लीजिए जो आपको प्लांट से या एनिमल से मिलता है वो सारे बायोडिग्रेडेबल होंगे। और इधर आप देखिएगा, दीज आर ऑल सिंथेटिक सब्सटेंस, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको इसी वीडियो में यहाँ पे हम, और अभी तो वीडियो बना रहे हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे, एक बुक में आपके चार्ट है उसको ऐड कर देंगे, उसमें लिखा हुआ है, उसको हम एक बार बोल दे रहे हैं। क्या कह रहा है, वेजिटेबल्स पील्स, मतलब क्या चीज कहते हैं उसको, सब्जी, किसी भी वेजिटेबल का छिलका या फ्रूट्स का छिलका, they are biodegradable, they take about 1 to 2 weeks to decompose and completely get mixed into the soil, so they are biodegradable. Paper, it will take around 10 to 30 days to decompose into simple and harmless substance. Cotton cloth, it takes 2 to 5 months. Wood means lakdi, it will take around 10 to 15 years. Woolen clothes, it will take around 1 year. And some metals like tin, aluminium, it will take more than 100 to 500 years. So these are considered as non-biodegradable, and plastics take several years to decompose. It will decompose, but it is considered as non-biodegradable substance because it will not decompose very easily. It will take many years. Okay, so with this chart that I will provide in this video, I will provide that. From that you can write it, or you can also find this in your book also. So from there also this chart you will write in your book. Okay, next,
what is the problem with the plastic, how it affect the environment, environment को ये अफेक्ट कैसे करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसके बाद हम इसको बोर्ड को साफ करके फिर से लिखेंगे। बस अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। पहला चीज, if these plastic substances are burned in the environment, it will cause air pollution। ये क्या cause करेगा? Air pollution means हम अभी क्या बता रहे हैं? Problems associated with the plastic in environment। प्लास्टिक का environment में क्या क्या problems है। दूसरा, these plastics when it find its way to the water body, it will cause water pollution। Third, sometimes these plastic get buried under the soil, since it is non biodegradable, it will stay there for many years, and as we know, जैसा हम जानते हैं कि water seep into the soil and it recharges the groundwater, and moreover when water seep into the ground means in soil, it will provide moisture to the microorganism present inside the soil। So due to these plastics, since this plastic won't allow water to flow through, ये तो वाटर को अपने थ्रू पास होने नहीं देंगे, so these water won't seep into the soil, that will result into absence or lack of microorganism and other type of small insect, because वो सब तो मर जाएंगे, वो लोग रहेंगे नहीं वहां पे, क्योंकि उनको भी तो जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। so वो नहीं होगा तो ultimately it will cause soil pollution। ठीक है, it will cause soil pollution। next, sometimes these plastic bag or the plastic bottle or the tin can or the disposable glass, when you throw it, it will find its way to the drainage and the sewage। सीवर मतलब नदी का मतलब नाली जो होता है उसमें चला जाएगा, and it will cause clogging of sewer, सीवेज का क्लॉगिंग और ड्रेन, जो ड्रेन है जिससे ड्रेनेज होता है उसका क्लॉगिंग करेगा, ये कर सकते हैं। समटाइम्स दीज plastics on which the microorganism will grow। So अगर environment में बहुत प्लास्टिक पड़ा हुआ है, उसमें सड़ रहा है, चीजें उसमें पड़ी हुई है, पानी है, मान लीजिए प्लास्टिक है, बाहर रोड पे पड़ा हुआ प्लास्टिक, उसमें पानी जम गया है, तो पानी जम गया है तो क्या होगा उसमें, इट इज ए होम फॉर मेनी टाइप ऑफ डिजीज काउजिंग जर्म। सो इट इज होम फॉर डिजीज काउजिंग जर्म्स, उसके लिए जर्म्स के लिए ये होम होगा, मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड होगा। समटाइम्स you will see the animals that especially cow की बात कर रहे हैं हम लोग। cow, they find their food from the garbage, and we have the tendency to throw garbage in plastic bag। हमारे घर में जो वेस्ट होता है उसको प्लास्टिक में बांध के उसको हम लोग फेंक देते हैं। जब उसको फेंक देंगे तो वो एनिमल जब उस भोजन के लोभ में जब उसको खाएगा, that plastic will enter into its mouth and it will choke the respiratory tract, सांस लेने की नली को वो ब्लॉक कर देगा। Sometimes digestive tract, और जिसके कारण क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसके कारण क्या होगा, एनिमल का मौत हो सकता है। चलिए ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, केमिकल यूज्ड टू प्रिपेयर दीज प्लास्टिक्स आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मींस इट
कैंसर। सो जो फैक्ट्री में जो वर्कर इसको बनाते हैं, जो वर्कर इसको बना रहे हैं, उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि इसको जिस फैक्ट्री में बनाया जा रहा है वहां पे कोई तो काम कर रहा होगा, और जो ह्यूमन बीइंग वहां पे काम कर रहा होगा, these chemicals are carcinogenic and it will cause cancer to the workers that work in the industry where the plastic or the synthetic substance are made. Last point, एक और छोटा सा point. Since we know these plastic are recycled, when it is recycled, it is colored with different type of dyes. अलग अलग तरीके से इसको कलर करते हैं, और कलर करने के कारण these plastic bags become unhygienic, मतलब साफ नहीं होगा, अनहाइजीनिक फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। आप कभी कभी देखिएगा, मार्केट में भी देखिएगा, लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का बैग लेते हैं और जाते हैं चाय वाले को बोलते हैं कि आप इसमें 4 कप चाय दे दीजिए, और 4 कप ले लेते हैं उससे, और प्लास्टिक में चाय लेके आते हैं, और जहां लेके जाना होता है वहां जाकर इस प्लास्टिक से चाय को कप में डाल के, मींस इस प्लास्टिक बैग से निकाल के बांटते हैं सबको, जिनको जिनको पीना होता है। These plastics are not of good quality. They are carcinogenic. They will means these are unhygienic. साफ नहीं है for the food, means unhygienic for food material. फूड मटेरियल के लिए ये नहीं है साफ, खास करके रेडी टू ईट फूड के लिए। हाँ, आप एप्पल, बनाना, केला, मतलब जो भी ला रहे हैं लाइए उसको, वो ठीक है, वो फिर भी एक कवर में पैक्ड है वो, क्योंकि आप बनाना लाइएगा, चाहे केला लाइए, में सेब लाइएगा या कुछ भी लाइएगा, तो उसको पहले धोइएगा तब खाइएगा आप इसको, तो दैट इज फाइन। बट आप चावल, दाल, सब्जी और ये सब अगर प्लास्टिक में लेकर आ रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, खास करके दोज हु स्टडी, जो घर से बाहर रहते हैं और घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो पता चला कि ट्यूशन से लौटते समय कौन खाना बनाए, कहीं से मार्केट से खरीद लिए, प्लास्टिक में पैक करके ले आए और घर आके खा लिए। दिस इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड, बिकॉज दिस प्लास्टिक्स आर अनहाइजीनिक फॉर द रेडी टू ईट फूड। ठीक है, सो दीज आर द सम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक यूजिंग, and these are the problems that are caused by the plastic to the environment. तो समझने में हमको लगता है जितना बात है हम समझा ही दिए हैं आपको। वीडियो को रोकेंगे, हम लिख देंगे, आप लिख लीजिएगा उससे, ठीक है। चलिए, तो जो बोले वो लिखे, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीड्स टू फॉलोइंग हेल्थ एंड एनवायरमेंट hazards. Hazards means problem associated. When plastic are burned, cause air pollution because it release many harmful gases. लिख लीजिएगा, मन करेगा तो वो भी। When dumped in water body, cause water pollution. When dumped in land, cause soil pollution because it prevents the seeping of water into the earth. पानी को जमीन में सोखने से ये रोकता है, ठीक है। पॉली बैग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स एंड सीवर लाइंस, ठीक है। सो दिस प्लास्टिक बैग्स कॉज द चोकिंग और क्लॉगिंग, जाम कर देना, ऑफ द ड्रेन्स एंड सीवर लाइंस। पॉली बैग्स थ्रोन ऑन रोड्स और इन पार्क्स provide home for many disease causing germs. 6. Plastics are swallowed by animals like cows choking मतलब जाम कर देना, choking of their respiratory system, sometime digestive tract, ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। Chemicals used for preparation of plastic cause cancer among the workers. Plastics are unhygienic to keep food stuff in it. ठीक है, तो हम लोग समझ लिए प्लास्टिक क्या है,
प्लास्टिक का प्रॉब्लम क्या है, दीज आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक। हम समझ गए प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों में हम पढ़ लिए कि प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल and the substance that is obtained from the nature especially from plant and animals are called biodegradable। ये दोनों टर्म को याद रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं आपको। चलिए ये तो हट गए, लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, रोक के। चलिए कल के वीडियो में क्या पढ़ेंगे वो ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप उसको अपने बुक से भी या कहीं से यूट्यूब से कहीं से भी आप कोशिश कीजिएगा 5 R's को सर्च करने का और उसको एक बार देखिएगा। 5 R, फर्स्ट R से होता है रिड्यूस, दूसरा से होता है रीयूज, तीसरा R से होता है रिसाइकल, चौथा R से होता है रिफ्यूज और पांचवा R से होता है रिकवर। रिकवर और इसको पहले रिकवर ही लिख लो फिर रिफ्यूज लिखना, सीक्वेंस अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। रिफ्यूज, एक्चुअली ये रिफ्यूज सबसे ऊपर होना चाहिए था, मगर फिर भी समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिड्यूस मतलब कम से कम प्लास्टिक यूज कीजिए, मींस रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड रिड्यूस, पहला आर कंप्लीट। रीयूज, अब मान लीजिए ठीक है कोल्ड ड्रिंक लाए हैं तो उसको गिलास में तो नहीं लाइएगा, तो बॉटल में ही लाइएगा, तो उस बॉटल को फेंकने से पहले रीयूज कीजिए, करते रहिए, जितना बार यूज कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद अब वो बॉटल यूज करने लायक नहीं है तो उसको इधर उधर नहीं फेंकिए, उसका रिसाइकल कीजिए। मतलब रिसाइकिल में क्या होता है, दीज प्लास्टिक्स आर मेल्टेड एंड द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेल्टिंग इज यूज्ड टू मेक न्यू सब्सटेंस। तो क्या होगा, जो प्लास्टिक जिसको आप फेंक देते रोड पे गंदगी पैदा करता वो क्या हो रहा है, वो यूज होके फिर से नया प्लास्टिक बन रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि अब जैसे मान लीजिए 1 लाख टन प्लास्टिक का बोतल आज है, मान लीजिए, कहने के लिए बात मान रहे हैं हम, अगर मान लीजिए उसको आप रिसाइकिल नहीं करते तो अगले दिन फिर से बनेगा 1 लाख टन, फिर अगले दिन 1 लाख टन। हम होल वर्ल्ड की बोल रहे हैं कि एक दिन में मान लीजिए 1000 टन, 10,000 टन, कुछ भी मानिए, हम कह रहे हैं कि 10,000 टन का प्लास्टिक डेली नया बन रहा है। अब अगर मान लीजिए कि आप उसको रिसाइकिल कर देते हैं तो नया नहीं बनेगा, ये पुराना वाला ही प्लास्टिक यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब और एक्स्ट्रा बर्डन एनवायरनमेंट पे नहीं पड़ेगा, इसलिए रिसाइकिल। नेक्स्ट करता है रिकवर। रिकवर कहने का क्या मतलब है कि जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कचरा भूनने वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस प्लास्टिक को रिकवर करते हैं। आप फेंक देते हैं जहां तहां, आप उसको क्या करते हैं कि जहां तहां फेंक देते हैं, वो उसको रिकवर करते हैं और रिकवर करके उसको गार्बेज कलेक्टर मींस खास करके वो क्या करते हैं उसको, भूल गया मैं टर्म है, जो लोग कबाड़ी का काम जो करते हैं वो क्या कर देंगे, इस सब कचरा को कलेक्ट करके बड़े फैक्ट्री में भेजेंगे जहां पे इसका यूज होगा, उसको रिकवर कहेंगे। ये रिफ्यूज कहने का क्या मतलब, अब जैसे मान लीजिए कि हम भी एक दुकानदार हैं और मेरे बगल में एक और दुकानदार है, ये भी क्या कहते हैं एप्पल बेच रहा है, हम भी एप्पल बेच रहे हैं, मेरा भी एप्पल उसी क्वालिटी का है जो इसके क्वालिटी का है, पर हम एप्पल को तौल के उसके बाद उसको प्लास्टिक में आपको दे रहे हैं, और ये जो है एप्पल को तौल के आपको एक पेपर बैग में दे रहा है या मतलब नेचुरल सब्सटेंस के बैग में दे रहा है। तो आप कस्टमर होते हुए आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप मेरे यहाँ से सामान ना खरीद के इसके यहाँ से सामान खरीदें। क्यों? ऐसा होने से हमको ये चीज समझ में आएगा कि हम इसके जैसा प्लास्टिक यूज मतलब हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं इसलिए मेरा कस्टमर टूट रहा है, तो हम धीरे धीरे प्लास्टिक का यूज कम कर देंगे। जब हम प्लास्टिक का यूज कम करेंगे तो जो फैक्ट्री प्लास्टिक बनाती है उसको पता चलेगा मेरा कंजम्पशन प्लास्टिक का कम हो गया। जब उसको पता चलेगा कंजम्पशन कम हुआ प्लास्टिक का तो वो कम प्लास्टिक बनाएगा, और कम
थर्मोप्लास्टिक बनाएगा तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को इफेक्ट कम होगा। तो यही 5R के बारे में थोड़ा सा डिटेल के जो समझाना था वो समझा ही चुके। इसको फिर से कल देखेंगे और छोटा होगा कल का वीडियो, बहुत बड़ा नहीं होगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं फिर कल।